Hello students, how are you all? I hope you all are good and happy. So today we will begin with the lesson number 11 of your class 4 science, that is work, force and energy. You know what is force? A force, we apply force to push and pull something. A push or pull कब होता है? We will know the work is done when the something is moved from its place. अगर हम एक चीज को लेके एक प्लेस पे खड़े रहेंगे, the work is not done. If we will move towards the any object or towards anyway, towards anything, so that means the work is done. The moving of one object or person from one place to another, it means the work is done. For push and pull, we need force. अगर हम push करेंगे किसी चीज को, we need force. If we pull something, we also need force. So there are three types of force: frictional force, gravitational force, and muscular force. You know, if a bowler is throwing a ball, he's applying a force. वो force apply कर रहा है. And if a cricketer is, if a batsman is hitting that ball, so he's also applying that force. So ये किसकी वजह से हुआ? Force की वजह से हुआ. और work भी done हुआ क्योंकि वो ball, that ball has moved from one place to another. किसकी वजह से होता है? That is because of the energy. So let's begin with this lesson. In this lesson we will study about force and its effects. Force क्या होती है और उसके effects क्या होते हैं? अगर हम if we will apply force, तो उसके effects क्या क्या होंगे? Second is types of force. What are the types of force? Force के कितने types होते हैं? Third is work. Work क्या होता है? कि work done कब माना जाता है? Fourth is simple machines. What do you mean by simple machines? And the last one is energy and its sources. Energy हमें कहाँ से मिलती है और उसके sources क्या क्या होते हैं? Look at the picture given below showing the applications of force for different purpose. Force is being applied to move a resting object. Yes, a boy is applying the force to move the cupboard. Here, force is being used to provide speed to the moving object. जो wheels है इसको moving object को speed provide करने के लिए भी force लगा रही है girl. Third, force is being used to change the direction of a moving object. फुटबॉल की डायरेक्शन चेंज करने के लिए भी बॉयज क्या कर रहे हैं? दे आर अप्लाइंग द फोर्स. Here, force is being used to stop a moving object. Yes, the ball. If someone has kicked that football, so a man is applying the force to stop that object. And the last one is force is being used to change the shape of an object. अगर हमें किसी चीज की शेप चेंज करनी है, here the boy क्या कर रहा है इसमें? वो अपना एक बलून को इनहेल करके, अपने ऑक्सीजन इनहेल करके फोर्स अप्लाई कर रही है, बलून को फुल बलून को बड़ा कर रहा है, तो उससे क्या होता है? द बॉय इज अप्लाइंग द फोर्स फॉर मेकिंग दैट बलून बिग. हियर फोर्स एंड इट्स इफेक्ट्स. फोर्स और उसके इफेक्ट्स क्या क्या होते हैं? You must have seen a cricket match. आपने देखा होगा एक क्रिकेट मैच. The bowler uses force to ball. क्या करता है वो बॉलर? फोर्स पर अप्लाई कर रहा है बॉल करने के लिए. द बैटर यूजेस फोर्स टू हिट द बॉल. तो फिर बैटर ने क्या कहा? फोर्स अप्लाई करी बॉल को हिट करने के लिए. द फील्डर यूजेस फोर्स टू स्टॉप इट. और जो फील्डर है उसने फोर्स अप्लाई करी इस बॉल को स्टॉप करने के लिए. दीज आर थ्री वेज इन विच द क्रिकेटर यूज फोर्स. ये थ्री वेज है जिसमें क्रिकेटर ने क्या यूज करा? फोर्स को यूज करा. फोर्स इज यूज टू मूव अ बॉडी. द बॉल इन दिस केस फोर्स अप्लाई करी गई बॉडी को मूव करने के लिए, इसमें बॉल को मूव करा गया है. सेकेंड, स्टॉप अ मूविंग बॉडी. एक बॉल को जो मूव हो रही थी उसको स्टॉप करने के लिए फोर्स अप्लाई हुई है. थर्ड, चेंज द डायरेक्शन ऑफ द मूविंग बॉडी. जो बॉडी मूव करे उसकी डायरेक्शन चेंज करने के लिए बैट्समैन ने अप्लाइड करिए फोर्स. फोर्स कैन यूज टू पुश और पुल समथिंग. फोर्स हम कब अप्लाई करते हैं? किसी भी चीज को पुश करने के लिए या पुल करने के लिए. वी अप्लाई फोर्स टू पुश द पेडल्स ऑफ अ बाइसिकल टू मेक इट मूव. आप बाइसिकल राइड करते हो, you apply force to push the pedals of that bicycle to move that my bicycle. Similarly, we use force to press the brakes to stop it. और हम क्या करते हैं? ब्रेक्स को यूज कर लेते हैं उसको स्टॉप करने के लिए. Here are the types of force. Force कितने types की होती है? There are three types of force: frictional force, gravitational force, and muscular force. In nature, there are two types of forces that are acting all the time. These are frictional और gravitational. नेचर में तो दो ही टाइप की है.
दैट इज फ्रिक्शनल, जो फ्रिक्शनल फोर्स होती है लेंथ से फ्रिक्शन होती हुई जाती है। एंड देन सेकंड इज ग्रेविटेशनल, जो ग्रेविटी अपनी तरफ पुल करती है लेंथ। First, we will talk about frictional force. An opposite force that stops the moving of an object is called frictional force. जो एक opposite force होती है जो क्या stop करती है, बॉडी को मूव होने से stop करती है, that is frictional force. When you pedal a bicycle, जब आप एक pedal करते हो bicycle को, it moves. वो क्या करती है, वो move करती है. When you apply brake, अगर आप apply कर देते हो brakes, it stops. वो stop हो जाती है because of friction. किसकी वजह से stop होती है, वो friction की वजह से stop होती है. फ्रिक्शन एक्ट्स बिटवीन अ मूविंग ऑब्जेक्ट एंड अ सरफेस। फ्रिक्शन कब एक्ट करता है, जब कोई ऑब्जेक्ट मूव कर रहा होता है किसी एक सरफेस पे। इट स्लोज डाउन द मूविंग ऑफ द ऑब्जेक्ट। वो क्या स्लो करता है, जो बॉल मूव हो रही है उसको स्टॉप कर देगा। थ्रो द बॉल ऑन द ग्राउंड, वो फ्रिक्शन होती हुई जाएगी, दैट इज मूव करेगी किसकी वजह से, फ्रिक्शन की वजह से, और फ्रिक्शन की वजह से वो स्टॉप भी हो जाती है। फ्रिक्शन इज क्रिएटेड व्हेन टू बॉडीज कम इनटू कांटेक्ट। जब आपकी जो टू बॉडीज कांटेक्ट में आ जाती है तो क्या होता है, फ्रिक्शन क्रिएट होता है। इट डिपेंड्स अपॉन द नेचर ऑफ द सरफेस। वो किस पे डिपेंड करता है, जो नेचर है सरफेस का। इफ द नेचर इज रफ, अगर नेचर रफ होगा, मतलब कि आपका लैंड रफ होगा, तो बॉल जल्दी स्टॉप हो जाएगी। द फ्रिक्शन प्रोड्यूसेस विल बी ग्रेटर, जो फ्रिक्शन ज्यादा प्रोड्यूस होगी वो ज्यादा होगी, इसलिए बॉल स्टॉप हो जाएगी जल्दी से। इफ द सरफेस इज स्मूथ, अगर सरफेस स्मूथ है, द फ्रिक्शन प्रोड्यूस इज लेस, जो फ्रिक्शन प्रोड्यूस होगी वो बहुत ज्यादा कम होगी और बॉल मूव करती रहेगी, बॉल स्टॉप ही नहीं होगी। इफ द इट इज डिफिकल्ट टू वॉक ऑन अ वेरी स्मूथ सरफेस एज कम्पेयर टू अ रफ सरफेस, तो ये इसलिए क्यों होता है कि जो हम अगर स्मूथ सरफेस पे वॉक करते हैं तो हम स्लिपरी हो जाते हैं। किसकी वजह से, क्योंकि वहां पे फ्रिक्शन तो है ही नहीं। अगर हम रफ सरफेस पे मूव करेंगे वी विल नॉट स्लिप बिकॉज देयर इज मोर फ्रिक्शन। We can slip on smooth surface as there is less friction. If there is no friction, the moving object will not stop. अगर friction नहीं होगी तो जो moving object है वो stop ही नहीं होगा. For example, glass or ice causes very less friction. जो glass है और ice वो क्या करती है, बहुत कम less friction को cause करती है. The tires of cars gradually become smooth after some time. आपने देखा हो जो tires होते हैं cars को smooth हो जाते हैं थोड़े टाइम के बाद। दिस इज ड्यू टू फ्रिक्शनल फोर्स इन कांटेक्ट विद द रोड। किसकी वजह से होता है, ये जो फ्रिक्शनल फोर्स कांटेक्ट में होती है रोड की, उसकी वजह से। हियर लेट्स टॉक अबाउट ग्रेविटेशनल फोर्स। ग्रेविटी इज द फोर्स दैट एक्ट्स डाउनवर्ड एंड पुल वेरियस ऑब्जेक्ट्स टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ द अर्थ। ग्रेविटी क्या होती है, वो डाउनवर्ड एक्ट करती है और क्या पुल करती है, दैट पुल्स वेरियस ऑब्जेक्ट्स, बहुत सारे ऑब्जेक्ट्स को पुल करती है टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ द अर्थ। विदाउट ग्रेविटी वी वुड बी फ्लोटिंग अराउंड। अगर ग्रेविटी नहीं होगी तो आप फ्लोट करते रहेंगे। इफ यू थ्रो अ बॉल इन द स्काई, अगर आप बॉल थ्रो करते हो स्काई में, इट विल कम डाउन टू द ग्राउंड। वो वापस से कहाँ आएगी, ग्राउंड पे आ जाती है। एवरीथिंग दैट गोज हाई, जो भी चीज ऊपर जाती है, फॉल्स बैक टू द ग्राउंड, वो वापस से ग्राउंड पे आती है। इट इज बिकॉज ऑफ द ग्रेविटेशनल फोर्स दैट पुल्स इट टुवर्ड्स द ग्राउंड। किस वजह से होता है, क्योंकि जो ग्रेविटेशनल फोर्स होती है वो पुल कर लेती है ग्राउंड की तरफ। When you throw the ball up, जब आप बॉल को ऊपर की तरफ थ्रो करोगे, you throw it with a lot of force। आप बहुत सारी फोर्स के साथ उसको थ्रो करते हो, which is more than the force of gravity। जो एक ग्रेविटी की फोर्स होती है उससे ज्यादा होती है, पर फिर भी बॉल तो वापस ग्राउंड की तरफ आएगी। So it rises up, वो ऊपर की तरफ राइज करती है। After a while, it loses this force and then gravitational force pull it down। थोड़े टाइम के बाद वो फोर्स लूज कर देती है, फिर से वो ग्रेविटेशनल फोर्स अपनी अप्लाई करती है तो उसको पुल कर लेती है अपनी तरफ। Here, let's talk about muscular force, that is the third type of force. The force exerted by our muscles is known as muscular force। जो force हमारी muscles से करती है, exert करती है, that is muscular force। Apart from these, there are some more types of forces like magnetic force, mechanical force, etc. इन forces से अलग भी बहुत सारी forces होती है, mechanical force हो गई, magnetic force हो गई, about which you will study in higher classes। अब इन forces के बारे में you will study in your higher classes। Here let's talk about work। work क्या होता है, you apply force to do work। आप क्या अप्लाई करते हो, फोर्स अप्लाई करते हो क्या करने के लिए, वर्क करने के लिए। in scientific terms, the work is done when force applied on an object moves it। साइंटिफिक टर्म्स में क्या होता है, वर्क कब होता है, जब एक
एक ऑब्जेक्ट मूव कर जाता है. अगर ऑब्जेक्ट मूव ही नहीं करेगा द वर्क इज नॉट डन. नो वर्क इज सेड टू बी डन इफ द ऑब्जेक्ट डज नॉट मूव फ्रॉम इट्स ओरिजिनल पोजीशन आफ्टर अप्लाइंग फोर्स ऑन इट. और आप फोर्स अप्लाई कर रहे हो. इफ अ मैन इज स्टैंडिंग होल्डिंग ब्रिक्स, तो वहीं पे स्टैंड है ना, तो वर्क इज, चाहे उसके फोर्स अप्लाई हो रही है उसको होल्ड करने में, बट द वर्क इज नॉट डन. इफ ही विल मूव वन स्टेप फॉरवर्ड, सो देन द वर्क इज डन. In other words, if a push or pull moves an object through a distance, work is said to be done. अगर बहुत distance एक push और pull object को move कर देता है, तो work हुआ है. If a force is applied and object does not move, और force apply हो रही है और object move नहीं कर रहा, then it is said to the not said no work has been done. तो उसको क्या कहता है कि कोई work हुआ ही नहीं है. वर्क इज सेड टू बी डन ओनली व्हेन द ऑब्जेक्ट मूव्स. वर्क सिर्फ जब ही होता है जब कोई ऑब्जेक्ट मूव करता है. फॉर एग्जाम्पल व्हेन यू किक अ फुटबॉल, अगर आप फुटबॉल किक करते हो, यू डू वर्क, आप वर्क करते हो. द अमाउंट ऑफ वर्क डिपेंड्स ऑन टू फैक्टर्स. जो अमाउंट होता है वर्क का किस पे डिपेंड करता है? टू फैक्टर्स पे डिपेंड करता है. फर्स्ट, द अमाउंट ऑफ फोर्स अप्लाइड ऑन द ऑब्जेक्ट, जो अमाउंट ऑफ फोर्स अप्लाई हो रही है एक ऑब्जेक्ट पे. सेकेंड, द डिस्टेंस मूव बाय एन ऑब्जेक्ट एंड ऑन अप्लाइंग द फोर्स, जो एक डिस्टेंस मूव हुआ है ऑब्जेक्ट से अप्लाई करने पे फोर्स. वर्क में बी डन इन द डायरेक्शन ऑफ द मोशंस और इन द अपोजिट डायरेक्शन. वर्क कब होता है कि डायरेक्शन होती है मोशंस की और अपोजिट डायरेक्शन से जो फोर्स अप्लाई होती है. डू यू नो फोर्स ऑफ ग्रेविटी मीन्स remains active on an object even when it is in rest. फोर्स ऑफ ग्रेविटी भी जब एक ऑब्जेक्ट पे जब भी अप्लाई हो रही है, जब वो रेस्ट पे मतलब वो मूव नहीं कर रहा, तब भी फोर्स ऑफ ग्रेविटी अप्लाई होती है. Here simple machine, let's talk about simple machine like pull, scissors, pillars. They are known as the silvers. They are known as the simple machines. We often ask some tools to do our work easily. हम कुछ tools को use करते हैं अपने work को easy करने के लिए. These tools are known as machines. Tools को क्या कहते हैं? Machines कहते हैं because they are making our work easier. In fact, man has been using machines from very old times. बहुत ओल्ड टाइम से मैन यूज करते आ रहे हैं मशीन्स को. टुडे वी आर डिपेंडेंट ऑन देम फॉर ऑलमोस्ट एवरी टास्क. आजकल हम सारे टास्क के लिए मशीन्स पे डिपेंडेंट हो गए हैं. सिंपल मशीन्स आर वर्क एज लेवर. सिंपल मशीन्स को हम क्या कहते हैं? लेवर कहते हैं, व्हील कहते हैं, एक्सल, इंक्लाइन प्लेन, पुले एंड स्क्रू. दीज आर आर सिंपल मशीन्स. A big machine like a crane or a bicycle is made up of two or more machines and it is called complex machine. जो बिग मशीन्स होती है जैसे क्रेन हो गई, बाइसिकल हो गई, इट इज मेड अप ऑफ टू और मोर मशीन. किससे बनी होती है? टू और उससे ज्यादा मशीन से बनी होती है. इट इज कॉल्ड कॉम्प्लेक्स मशीन. जिस मशीन में दो से एक से ज्यादा या मतलब दो मशीन आ जाए, दैट इज द कॉम्प्लेक्स मशीन. लाइक योर टेलीविजन, दैट इज द कॉम्प्लेक्स मशीन. Now energy has and its force. Energy और उसकी force क्या होती है? The ability to do work is known as energy. जो एक ability होती है किसी work को करने के लिए कि हम इस work को कर सकते हैं, that is the energy. We need energy to do work. हमें energy क्यों चाहिए होती है? हमें energy work करने के लिए चाहिए होती है, and that energy we get from food or electricity. We obtain energy from the food we eat. हमें energy कहाँ से मिलती है? जो हम food खाते हैं. एनर्जी इज रिक्वायर्ड फॉर ऑल टाइप्स ऑफ वर्क. एनर्जी सारे टाइप्स ऑफ वर्क के लिए रिक्वायर्ड होती है. एनर्जी यूज फॉर परफॉर्मिंग सिंपल टास्क लाइक वर्किंग, टॉकिंग, रीडिंग एक्सेट्रा. अगर हम वॉक करें, टॉक करें, रीड करें, टीच करें, सो वी आर अप्लाइंग आवर एनर्जी. इट इज ऑल्सो यूज फॉर परफॉर्मिंग टफ टास्क लाइक क्लाइंबिंग, लिफ्टिंग, कैरिंग एक्सेट्रा. जो हम टफ टास्क भी करते हैं जैसे क्लाइंबिंग हो गया, कैरिंग हो गया, लिफ्टिंग हो गया, तो उसमें भी हम फोर्स अप्लाई करते हैं, एनर्जी अप्लाई करते हैं. एनर्जी एक्सर्ट इन डिफरेंट फॉर्म. एनर्जी कहाँ से आती है? डिफरेंट फॉर्म से आती है. सोलर एनर्जी होती है, विंड एनर्जी, हीट, लाइट, साउंड एंड इलेक्ट्रिसिटी. दीज आर द फॉर्म्स ऑफ एनर्जी. इट कैन ऑल्सो बी ग्रुप्ड इनटू केमिकल एंड मैकेनिकल एनर्जी. और इनको हम केमिकल और मैकेनिकल एनर्जी में भी ग्रुप कर सकते हैं. नाउ सन से हमें क्या मिलती है? वी गेट सोलर एनर्जी फ्रॉम द सन. The sun is the main source of energy on the earth. Sun क्या है? main source है energy का हमारे earth पे. The energy that we obtain from sun is called solar energy. जो energy हमें मिलती है sun से, that is solar energy. We use solar energy in various ways. हम solar energy को बहुत सारे ways में use करते हैं for making electricity,
For moving something, we for like in solar cookers, we are using solar energy. Plants use solar energy to make their food. Plants solar energy को use करते हैं किस लिए? अपना food बनाने के लिए. This energy is saved in chemical form. किस form में saved होती है ये energy? Chemical form में saved होती है. Solar energy can be also be used to produce electricity. Solar energy electricity produce करने में भी use होती है. We use it for cooking food. हम food cook करने में use करते हैं. Fetching water, heating water, running fans, etc. Fetching करने में भी water को, heating water में भी, running fans में भी. In industries, it is used to produce electricity. Industries में कब use होती है? Electricity produce करने में use होती है. Solar energy is an unlimited or inexhaustible source of energy. Solar energy क्या है? हमारी unlimited और inexhaustible source है किसकी? Energy की. Now let's talk about water. Moving water also generates electricity. जो moving water होती है क्या generate करती है? Electricity generate करती है. Electricity can be produced by tidal energy. Electricity किससे produce होती है? Tidal waves से जो tidal energies आती है उससे होती है. We construct dams to utilize this energy. और हम dams construct करते हैं इस energy को use करने के लिए. Dams allow the water to fall with force from a great height onto turbines. ये dams क्या allow करता है? Water को height से fall करने में allow करते हैं from great height onto turbines. Turbines में turbines in turn move does produce electrical energy. जो turbines होते हैं वो move करते हैं क्या produce करते हैं? Electrical energy produce करते हैं. आपने देखा है ना dams में electrical energy produce होती है. Here it is a hydroelectricity power plant. Now let's talk about wind. Wind क्या होती है? Energy from wind is called wind energy. जो energy हमें wind से मिलती है हम उसको क्या कहते हैं? We call it as wind energy. A moving object has wind energy. जो एक object move कर रहा होता है उसकी क्या होती है? Wind energy होती है. Wind energy can be used to operate windmills. किस में use होती है? Windmills को operate करने में use होती है. Windmills in turn move the machines called turbines. Windmills क्या move करती है? Turbines use होती है turbines move करने में. Turbines help to generate electrical energy. और turbines क्या help करते हैं generate करने में? Electrical energy generate करने में help करते हैं. Here is the recapitulation of this whole lesson. First point. Force is required to do all types of work. Force किसमें required होती है? सारे types को work करने में required होती है. Second, a pull or push acting on an object is called force. जो एक push और pull apply हो रहा है एक object उसको क्या कहते हैं? Force कहते हैं. Third, work is said to be done only when an object is moved from its place. Work जब ही होता है जब एक object एक उसकी place से move होता है. Fourth, simple machine make our work easier and faster. जो simple machines होती है वो हमारे work को easier करती है और faster करती है. Next, energy is the ability to do work. Energy क्या होती है? Ability होती है किसी work को करने के लिए. Next, sun, water and wind are various sources of energy. जो हमारी different sources energy की क्या है? Sun है, water है और wind है. So, that's all for this lesson. I hope you all like the explanation of this lesson. Thank you and have a great day.